بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 61 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے یہ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اطلاعات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ میرے دل کا حال کوئی بھی نہیں جانتا، بھائی رضوان الحق سب سمجھتے ہیں میں کملا ہو گیا ہوں، اس لیے آپ نے فون کر بیٹھا ہوں، شاید میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں تمہاری بات تو سمجھ رہا ہوں بھائی افتخار، مگر میری سمجھ میں اور کئی باتیں نہیں آ رہی۔ تم ان سعد صاحب کے بھائی ہو تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا ان کا کوئی ایسا بھائی بھی ہے جو گم ہو چکا ہے؟ تمہاری بہن جی جو قصہ تمہیں سعد صاحب کے والد اور والدہ کا سناتی ہیں، اس میں بھی سعد صاحب کے بھائی کسی بھائی کا ذکر نہیں، پھر تم ان کے بھائی کیسے ہوئے؟ میں نہیں جانتا بھائی رضوان الحق، پر میرا سانس پھول جاتا ہے، میرے قدم بھاری ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے میں بے دم ہو جاتا ہوں۔ رب دا نام ہے بھائی رضوان الحق، میرے حق اندر دعا کرو، خدا کا واسطہ ہے میرے لیے دعا کرو۔ کھاری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کسی سے بھی کسی قسم کی اپیل کرے جو کوئی اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ آپا رابعہ اپنا وقت ضائع کرنے پر اسے ڈانٹ کر واپس اپنے گھر جا چکی تھی۔ سعدیہ کبھی اس کی حالت پر اس کا مذاق اڑاتی اور کبھی تشویش ظاہر کرنے لگ جاتی۔ اسے محسوس ہوتا کھاری پر کسی جناتی شے کا سایہ تھا۔ وہ اسے مولوی سراج سرفراز سے دم کروانے بھیج دیتی۔ مولوی سراج سرفراز دم کرنے کے بعد اسے اپنے ذہن دین کے باتوں میں لگانے کی تلقین کرنے لگتے۔ ان کا خیال تھا کھاری گاؤں کے بگڑے ہوئے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تھا اور اس کے خیالات بہرہ روی کا شکار ہو رہے تھے۔ دن اور رات کھاری کے لیے مشکل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ چودھری سردار شکار سے فارغ ہو کر وہیں سے کراچی جا چکے تھے۔ کراچی سے انہیں تھائی لینڈ چلے جانا تھا اور 15-20 دن سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسے زندگی کی نئی حکایت سنانے والے پچھو پائی بھی اسے اس کے پیروں سے اکھیڑ کر کہیں غائب ہو چکی تھی۔ خدا کسی کو میرے ورگا پیدا نہ کرے، نہ پیچھے دا پتہ نہ آگے دا پتہ، جے پتہ لگنے لگے تو سر نہ دے تو بغیر مٹھی دے وچ لکھیا ہوئے۔ وہ اکثر سوچنے لگا، میں نے اس روز جو بات تم سے کہی تھی ماہ نور، مجھے اس کا صرف شک نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ سعد کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھنے والی لڑکی تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ سارا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماہ نور نے دیکھا سارا کی مسکراہٹ میں اداسی تھی جسے چھپانے میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ تم نے میری بات پوری سنی نہیں شاید سارا، ماہ نور نے کہا۔ مجھے اس کی محبت کا اعتراف اس وقت ملا جب اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے وہ خود میرے سامنے موجود نہیں۔ شاید تمہیں اندازہ نہ ہو سکے کہ وہ کیسی بے بسی کی کیفیت ہے۔ سعد جیسے شخص کی محبت کے اعتراف کا مل جانا ہی اتنا بڑا احسان ہے ماہ نور کہ اس کے بعد کسی دوسری سوچ کا ذہن میں آنا ممکن ہی نہیں۔ سارا نے کہا، وہ سامنے موجود نہیں مگر وہ ہے اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اگر وہ میرے جیسی لڑکی کو جس سے اس کا لفظ ہمدردی کا تعلق ہے یہ یقین دلا سکتا ہے کہ وہ میرے لیے ہر وقت کہیں بھی موجود ہے تو اس کے دل کا سب سے مقدس جذبہ ہو۔ سوچو وہ جہاں بھی ہے تمہارے لیے کیا اور کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ ماہ نور نے بے بسی سے کہا۔ وہ جن سے بھاگا ہے انہیں تو اس کے بھاگنے کی پرواہ بھی نہیں، جسے پرواہ ہے جو اس کے لیے دن کے 24 گھنٹے بے قرار ہے، اسے ایک بے نشان راستے کے مسافر بنا گیا۔ بتاؤ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ انتظار کرو ماہ نور، اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر آنا ہی ہوگا، سارا نے یقین کے ساتھ کہا۔ انتظار، صبر، تلاش، ماہ نور روحانسی ہو گئی۔ آزمائش سے بچانے کے لیے سعد نے کبھی میرے سامنے اعتراف نہیں کیا، اس آزمائش میں خود ہی مجھے ڈال دیا۔ انتظار، سارا نے دہراتے ہوئے کہا۔ تلاش، صبر، وہ بڑبڑائی، ہم میں سے ہر کوئی اس آزمائش میں پڑتا ہے، اس سے گزرتا ہے، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، اور اکثر کی تو تلاش، انتظار، صبر سب بے سود ہی رہتا ہے،
नाकामी का शिकार होठी और मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेते हुए चलती अपने कमरे में चली गई। अब ये अकेली बैठी रहेगी, कुर्ती और रोती रहेगी। सीमी आंटी ने कशीदाकारी के फ्रेम से नज़रें हटाकर सारा को जाते हुए देखने के बाद महानूर से कहा, क्यों? महानूर ने बेध्यानी में सवाल किया। इसकी नज़रें सामने मौजूद बुलंद पहाड़ों पर जमी थी और जहन साद सुल्तान के ख्यालों में खोया था। मैं इससे कहती थी कि साद के बारे में ज़्यादा ना सोचा करे, सीमी आंटी ने कहा। साद को इससे हमदर्दी तो हो सकती है, खलूस के साथ मदद करने का एहसास तो हो सकता है, मगर जिस मोहब्बत का ख्याल इसके दिल में है वो साद सुल्तान इससे नहीं कर सकता। और अब जबकि इसे मालूम हो चुका है कि वो जो सोचती थी वो गलत था, तो इसे शिद्दत से एहसास होने लगता है कि जिसके जज्बात और मोहब्बत को इसने नज़रअंदाज किया, इसके रवैये पर इसका क्या हाल होता होगा। हैं? महानूर अपने ख्यालात से चौंक कर बाहर निकली। ऐसा कौन था? ऐसा भी कोई था? बेतरतीब जुमले इसके मुंह से निकले थे। हाँ, सीमी आंटी ने सर हिलाते हुए कहा, वो रक्कू था, ब्लू हेवन सर्कस का हर दिल अजीज मस्खरा, जिसे हम वक्त की धूल के बहुत पीछे छोड़ आए हैं, सीमी आंटी कह रही थी और महानूर सुन रही थी। मुझे इस लड़की के बारे में बताओ इब्राहिम, जिसके घर के बाहर से आखिरी मर्तबा तुमने साद को पकड़ा था। वो लड़की जो माजूर है और बेआसरा भी। आई एम सॉरी अंकल, मैं शायद आपको ना बता सकूं। वो साद का ऐसा मामला थी जिसके बारे में इसकी सख्ती से हिदायत थी कि इसके बारे में आपको इल्म नहीं होना चाहिए। इब्राहिम ने सर हिलाते हुए बिलाल सुल्तान को जवाब दिया। गधे हो तुम, वो डपट कर बोले थे। इसके सारे मामलात इस वक्त तक मेरे इल्म में नहीं आने चाहिए थे, जब तक वो यहाँ था, और तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। इस वक्त मैंने इसके किसी ऐसे मामले में टांग अड़ाने की कभी कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, और इसके जाने के बाद अगर इसके ऐसे तमाम मामलात रुक गए तो जानते हो क्या और किसका नुकसान होगा। जी अंकल, इब्राहिम इसके लहजे के सामने गिड़गिड़ा कर रह गया। इसके ऐसे तमाम मामलात की एक फहरिस्त बनाकर मुझे दो, जहां इसके अकाउंट से हर माह रकम मुंतकिल हुआ करती थी, और इस लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट इस माजूर लड़की का जिक्र और तफसील होनी चाहिए। मामलात रुक जाएं तो क्या होता है अंकल? इब्राहिम ने अहमकों की तरह सवाल किया। इन लोगों का कुछ और बंदोबस्त हो जाएगा, अल्लाह है ना। अहमक लड़के, मामलात रुक जाएं तो मसाइल के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। कभी जाकर इन लोगों की खबर भी ली है जिनके मामला इनके चले जाने की वजह से रुक गए हैं। वो पहले से भी ज़्यादा दबंग लहजे में बोले, और हाँ, ये ही तो तुम्हें बता रहा हूँ कि इन लोगों का कुछ और बंदोबस्त करना है, बाकी अल्लाह है ना। आखिरी जुमला उन्होंने नरम लहजे में कहा था। ठीक कह रहे हैं आप अंकल। इब्राहिम को अगरचे इनकी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन इसने इनकी तायद में सर हिला दिया था। बेचारे अंकल, बाद में इसने सोचा था साथ के यूं चले जाने ने इनका दिमाग बिल्कुल ही बेठिकाना करके रख दिया है। वो सारा को चाहता था, बहुत ज़्यादा चाहता था। इसकी हर उल्टी सीधी फरमाइश पूरी करना अपना फ़र्ज समझ लेता था। छोटी आंखों, गोल नाक और राउंड चेहरे वाला रक्कू न जाने कब और कैसे अचानक कहीं से आकर ब्लू हेवन सर्कस का हिस्सा बन गया था। बेचारा अपनी माँ से दूर, बाप से ज़हनी फासलों पर खड़ा, घर वालों की बेनियाजी का शिकार, घर से भाग कर आया था, और ब्लू हेवन सर्कस का हिस्सा बनकर हम सब में घुल मिल सा गया था। वो हम सब से हंसी मजाक करता, सर्कस के तमाशाइयों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरता, किसी मेहरबान फरिश्ते की तरह हम वक्त हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता, मगर सारा के लिए इसके जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, ख़ास और जानदार। सीमी आंटी बता रही थी और महानूर खामोशी से सुन रही थी। वो इसको प्रिया रानी कहकर बुलाता था। सारा को पालने वाला मास्टर खान इसको परी या प्रिया रानी कहकर बुलाता था। इसके अलावा रक्कू था जो इसे प्रिया रानी कहा करता था। इसके हर अमल से सारा के लिए प्यार झलकता था, मगर सारा ने कभी इसे दरख्वार इतना नहीं समझा। जब ये 6 इंची बार पर करतब दिखाती नीचे गिरी, वो रक्कू ही था जो सर्कस के पर्दे के पीछे बैठे सब फनकारों को वहीं छोड़कर पंडाल में दाखिल हुआ और तमाशाइयों को धकेलता इस जगह जहाँ पहुँचा जहाँ सारा गिरी थी। सारा को उठाकर छोलदानी में लाए और फर्स्ट एड देने के दौरान वो वहीं मौजूद था। मैं वहाँ मौजूद थी। फिर सर्कस के मालिक मास्टर
काफू ने रक्कू को अपने पास बुलवाया। इसके बाद मैंने रक्कू को नहीं देखा, न सर्कस रिंग में, ना ही करतब की प्रैक्टिस करने वाले मैदान में, ना ही सारा की छोलदारी में। मैं चंद दिन के वक़्फ़े के बाद जब सारा के ज़ख्म ख़राब होने लगे तो किसी फरिश्ते की तरह सास सुल्तान आ गया और सारा को वहाँ से उठा लाया। मैं सारा की हालत देख कर इसे अकेले जाते ना देख पाई और साथ होली। बिलो हेवन सर्कस और वो जापानी गुड्डा रक्कू पीछे रह गए और हम आगे निकल आए। इसके बाद मुझे इल्म नहीं बिलो हेवन का क्या हुआ, रक्कू कहाँ गायब हुआ था, वो वापस बिलो हेवन आया या नहीं। हाँ, शुरू शुरू में, बल्कि इसके बहुत बाद तक सारा को बिलो हेवन वालों में अगर कोई याद आता था तो रक्कू ही था। अक्सर नींद में ये चीखते चिल्लाते हुए इसे आवाज़ें देती, इसे पुकारती, उठकर बैठ जाती थी। मैंने इसे समझाया, रक्कू को याद करना छोड़ दे, वो अपनी दुनिया में मगन होगा। इसे इसकी फ़िक्र होती तो इसे ढूंढ लेता। मैं ऐसा दानिस्ता किया करती थी ताकि इसे भूल जाए, क्योंकि इसको याद करने में इसे कोई फ़ायदा नहीं था। अब इतने अरसे बाद शाह सुल्तान का एहसास हाथ से छूट जाने पर इसे फिर से रक्कू याद आने लगा है। अब इसका ख्याल है जो कुछ इसके साथ हुआ वो रक्कू का दिल तोड़ने का नतीजा है। अब पछतावे इसको घेरने लगे हैं। मोहब्बत के ख्याल के गहरे एहसास से अचानक बेदखल हो जाने पर इसे मोहब्बत और ख्याल का वो गहरा एहसास याद आने लगा है जो दिलाने वाला दिलाता रह गया, मगर ये दाम में झटक रही थी। सीनी आंटी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। चीज़ों के हाथ से निकल जाने पर चीज़ों की कदर आती है। वो कह रही थी, मगर महानूर इनकी नहीं सुन रही थी। इसके जहन में चंद अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। छोटी आंखें, गोल नाक, राउंड चेहरा, सर्कस का मस्खरा, जापानी गुड्डा। इसके पर्दा जहन पर एक चेहरा याद बनकर उभरने लगा था, खारी। वो दिल में इस चेहरे के मालिक का नाम याद करते हुए उठी और कमरे में रखे अपने फ़ोन की तरफ लपकी। होली हाइस्ट रोड डार्लिंगटन पर वाक़या डार्लिंगटन मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचने तक नादिया को मालूम नहीं था कि वहां किसके बुलावे पर और किस लिए जा रही थी। अस्पताल के मरकज़ी गेट पर पहुंचकर इसने एक बार फिर पैगाम पर भेजने वाले के नंबर पर कॉल की। 2-3 बार बेल बजने के बाद कॉल वसूल कर ली गई। मैं नादिया बिलाल, नादिया ने कहा, मैं डार्लिंगटन पहुंच चुकी हूँ और इस वक्त मैं मेमोरियल अस्पताल के मरकज़ी गेट पर खड़ी हूँ। मेरा ख्याल है तुम वहीं रहो, मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए वहीं आता हूँ, दूसरी जानिब से कहा गया। नादिया शशरपंज में वहीं खड़ी थी। कुछ देर बाद इसके फ़ोन की घंटी बजी। इसने हाथ में पकड़ा फ़ोन ऑन करने के लिए नज़रों के सामने किया। रहने दो। सामने से आए एक अजनबी शख्स ने इसे करीब आकर मुखातिब किया। मैं सिर्फ तुम तक पहुँचने के लिए कॉल कर रहा था, वो बोला। नादिया ने इस्तफामिया नज़रों से इस शख्स की तरफ देखा। मैं वो वंजादे हूँ, इस शख्स ने कहा। वो वंजादे फ्रॉम अमेरिका। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है और वो खबर तुम्हारे भाई साद सुल्तान के मुतालिक है। मुझे उम्मीद है कि तुम हौसले के साथ ये खबर सुनोगी, वो कह रहा था और ज़मीन नादिया को अपने कदमों तले सरकती महसूस हो रही थी। कितने ही महीने गुजर गए, दूल्हा भाई की कोई खबर है ना खैर। मैं भी यही बहुत सोच रहा था आज जोहर के लिए वज़ू करने के दौरान। शुक्र है कभी तुमने भी सोचने की जहमत की, सिरा सरफराज, वरना तो ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग बेचारा अपने होने पर ही अश्क बहाता रहता होगा। मेरी बहन बेचारी गम में घुल रही है। शक्ल गई, आवाज़ गई और इसके साथ ही शौहर और बच्चा भी गए। इसकी तो समझ में शायद ये भी ना आता हो कि इन दिन के किस पहर किसका गम मनाए किसका ना मनाए। भाई साहब, इतने मादा परस कठोर और सख्त दिल लगते तो ना थे, मगर जो हो रहा है इसे देख कर ख्याल आता है कि शायद वो ऐसे ही थे। वो नज़र आता है जो होता नहीं अक्सर। हाँ, ये भी है। अब इसको क्या किया जाए कि मेरी बहन को हर दम लगन लगी रहती है हज पर जाने की। इधर उधर से तेरे मेरे से जो पैसा उधार नकद कर्ज दे रखा था वापस मांगने को कहती है। इसके अपने अकाउंट में जो पैसा है वो ये मास सब पैसे जो लोगों के वापस मांगती है। क्या ये सब मिलाकर हज के सफ़र का इरादा कर सकती है वो? आपा जी के लिए तो इनका पैसा, अपना पैसा जो बैंक में रखा है वही बहुत है हज के लिए,
लेकिन वो तो हम दोनों को भी साथ ले जाकर हज कराना चाहती है। राबिया बेगम सोचती होगी सफ़र के लिए हम सफ़र भी तो होना चाहिए, कोई साथ में। अरे इस बेवफा कठोर हरजाई को इसलिए तो रोती है, कैसे कैसे वादे ना कर रखे थे उम्र भर साथ निभाने के इसने। शक्ल से क्या गई, वो उससे क्या साथ में बच्चा भी उठाए ले गया। जालिम, हुस्न परस्त, निकम्मा और शक्ल का आशिक, किसी के आए कम वक्त को भाई साहब ऐसे दिखते तो ना थे। आपकी तो जनाब सराय सरफराज साहब अकल ही पूरी पूरी है, देख रहे हो वो कैसा वो मेरी बहन को चूना लगा कर भागा, साथ में बच्चा भी ले गया। फिर भी जब बात होती है ये ही कहे जाते हो भाई साहब ऐसे लगते तो ना थे। ना राबिया बेगम, चेहरा बिगाड़ कर किसी की नकलें उतारने से बड़ा गुनाह होता है। जहन्नुम के आगे आगे बढ़कर लपकती है इसे ऐसे शख्स की तरफ। मुझ मिस्कीन की नकलें उतार कर गुनाहगार मत हो आप। एक तो तुम्हारे वाज सरासर फराज, बुरा हुआ जो तुम एक निकाह के सदके मेरे मिजाजी खुदा बन बैठे। ना होता ये रिश्ता तो मैं तुम्हें बताती, ऐसे वाजों पर क्या हशर कर सकती हूँ तुम्हारा। अरे अल्लाह तौबा, ज़ुबान है चमड़े की फिसल गई, माफ़ कर दें सिराज सरफराज। मैं इतनी कोशिश करती हूँ काबू करने की, फिर भी फिसल जाती है। फ़िक्र ना करें, जल्दी काबू आ जाएगी। कोई बात नहीं राबिया बेगम, आपकी किसी बात का मलाल दिल में नहीं रखता मैं। अल्लाह जल्ले शानहू हिदायत अता फरमाए आपको। तुम्हारे जैसे बेइल्म मौलवी के ज़रिए हिदायत पाने से मैं बेहिदायती ही अच्छी हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी सिराज सरफराज साहब, जो मलाल दिल में नहीं लाते। आपा बेगम की शफ़क़त ख़ास शफ़क़त है जो मेरे लिए आप जैसी बीवी का इंतखाब कर दिया, वरना मैं मिस्किन जिसका ना कोई आगा पीछा था, सारी उम्र मौलवानों के दर पर पड़ा, मांगे की रोटी खाने वाला, मस्जिद मकतब से बिसात भर हिदायत हासिल करता फिरता, कभी किसी हाफिज जी से, कभी किसी मौलवी साहब से, कभी किसी मौलाना से, छोटी छोटी गलतियों पर भी दबा के डंडे खाने वाला, गिरते पड़ते उम्र गुजारता आदमी। मुझे ऐसे को आप जैसी हसीन सुघड़ सलीका शुआर अक्लमंद बीबी का साथ मिल जाता है, जाना ही मुआवजा है। राबिया बीबी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता इस मुआवजे पर। लो, मैं ठहरी ज़ात की मिरासन, और ये बेचारे भले धक्के खाता दीन इस्लाम का इल्म हासिल करने वाला आदमी। मेरी औकात देखो और इस बेचारे की सोच देखो, इस साथ को मुआवजा करार दे रहा है। वाह भाई नीली छतरी वाले, तेरी शान है जो बंदे को समझा देता है कि जो तुझे मिला तेरे औकात से बढ़कर है। क्या ये सब छोड़ें, ये बताएं कि जो पैसे अब तक इकट्ठे हुए इनसे हज का सफ़र क्या भी जा सकता है कि नहीं। मैंने पता करवाया है, पानी के जहाज़ के ज़रिए जाने पर पैसा कम खर्च होता है। आपा बेगम ने फरमाया था दरख्वास्तें जमा करवा दो, वो तो एक आध दिन में जमा हो जाएंगी। अल्लाह जल्ल शानहू की मंजूरी अता हो गई तो इंशाअल्लाह हज इस बार ज़रूर मुकद्दर बनेगा। वाह मेरे मौला जी, तेरी शान, किधर की ईंट और कहाँ का रोड़ा जोड़ कर तू कह कुनबे बना डालता है। सफ़र हज पर जो बुला लिया तो भला इस ग्रोह में कौन कौन शामिल होगा। एक पैदाइशी मिरासन, एक मौलवानों की डेवड़ी में पलने वाला बेनाम व निशान लमडा, और एक बेबस औरत जिसका ख़ानदान ऊंची नाक वाला, जो ऐशो आराम मोहब्बत खलूस की नरमी और गर्मी, रुपया पैसा सब छोड़कर खजूर में आन अटकी। वाह मेरे मौला, तेरी शान, तेरे सारे ही रंग निराले हैं। जो आप कहें राबिया बेगम, तो मैं भाई साहब की तलाश में पिंडी इस्लामाबाद का कसर ना कर लूँ। इस महल से बाहर निकल कर मॉडल टाउन तक का रास्ता आपको आता नहीं सिराज सरफराज साहब, और आप चले हैं पिंडी इस्लामाबाद का सफ़र करने, वो भी एक ऐसे शख्स की तलाश में जिसे मिलना होता तो गुम होता ही क्यों। बैठे रहिए यहीं आराम से। आप इन्हें नेक दिल समझ रहे हैं तो ये आपकी हमाकत है। ये सब एक जैसे हैं अंदर से, बस चेहरे अलग अलग सजा रखते हैं खुद पर। कोई बिलाल सुल्तान का चेहरा पहन मजलूम बेबस का आशिक बना चला आता है, तो किसी ने तीफे लाटा का चेहरा पहन रखा है। अंदर से सब एक हैं, हुस्न के और हविस के पुजारी। हुस्न उजाड़ कर हविस पर पानी डाल देने तक ही इनके रकाबत का रिश्ता कायम था। अब ना हुस्न रहा ना हविस, दोनों पुजारी सब उजाड़ कर अपनी अपनी राह चल दिए। बेड़ा गर्क हो जाए, दोनों
वरनों का दोनों को किसी और की आई आ जाए, हम तीनों की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाने वाले को तो तीफे से भी कर पहले आ जाए, कमबख्त सिसक सिसक कर मरे। ना राबिया बेगम, किसी को बद्दुआएं देना सख्त गुनाह है। बद्दुआ हमेशा देने वाले का पीछा करती है। उल्टा तौबा करें तौबा। आग लगे तुम्हारे बेवक्त वाजों को, सिरा सरफराज दिल कर रहा है चिमटा उठाकर तुम्हारे मुंह पर दे मारूं। कमबख्त, मगर क्या करूं, मेरी बहन की नसीहतें आड़े आ जाती हैं। शौहर की नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाली औरत जहन्नुमी हो गई। अरे मुंह बंद हो जाता है इसकी नसीहत याद करके। खुद कैसा अमल करती है इस बात पर, बड़ी तकलीफ़ें सहती, गम पीती है, मगर मजाल है जो शौहर के खिलाफ एक बात भी मुंह से निकाल दे। बेटे की मोहनी सूरत याद करके यकीनन कलेजा मुंह को आता होगा इसका, मगर भाप नहीं निकालती मुंह से। अरे ऐसी साबिर औरत का साथ ना होता 24 घंटों का सिरा सरफराज तो मैं देखती तुम कैसे मुझे ये बात सुनाते हरदम। जहन्नुम की आग की सुनाने वाले बखियाड़। इसने अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखा जो पिछले 1 घंटे से मुसलसल बोलता चला जा रहा था। वह वैसे ही बहुत बातूनी था, या इस वक्त एक इसराब के आलम में बेतहाशा बोल रहा था, इसे अंदाज़ा नहीं हो सका था, क्योंकि इस वक्त खुद इसे भी अपने अंदर से एक इसराब पर काबू पाने के लिए बहुत ध्यान बटाने वाले की ज़रूरत थी। खुद को आईने में देखे बगैर भी इसे अंदाज़ा हो रहा था कि शिद्दत गम को काबू में रखने की कोशिश में इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, और यकीनन आंखों की नमी छुपाने की कोशिश के बावजूद नज़र आ रही होगी। भला ये कैसा इत्तफाक है। इसने एक बार फिर अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखते हुए सोचा, ये शख्स जो अपना नाम मोहम्मदजादे बताता है, ईरानी और नस्ल अमरीकी है। खुद में बैक वक्त 2 मुल्कों की कौमियत की हामिल लड़की हूँ, और तीसरा वो शख्स जो मेरा भाई तो है, मगर इसकी कौमियत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। हम 3 लोगों को एक नुक्ते पर एक साथ इकट्ठा कर रहा है, यूँ कि मैं इस शख्स को और ये शख्स मुझे बिल्कुल नहीं जानते। जो हम दोनों को जानता है और जिसे हम दोनों जानते हैं, इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं वो जी रहा है या नहीं, वो जी सकेगा भी कि नहीं। इसका दिल बुरी तरह भर आया, और इस बार इसने अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश नहीं की। साद सुल्तान जो इसका सौतेला भाई था और जिसके साथ एक छत के नीचे रहने की इसने हमेशा तमन्ना की थी, मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी के हाथों मजबूर होकर इसे इतने बरस इससे दूर ही रहना पड़ा था। क्या कभी इसने सोचा था कि वही साद सुल्तान जिन लोगों में रहता चला आया था, इनसे अपना ताल्लुक़ तोड़कर जब इस कोहर आलूद मुल्क में आएगा तो अपनी शनाख्त के खाने में इसने सिर्फ नादिया बिलाल का हवाला दे रखा होगा। किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपने बारे में इतना देने के लिए सिर्फ इसका नंबर हर जगह दर्ज कर रखा होगा। नादिया ने रोते रोते सर झटका। ये शख्स मोहम्मदजादे कहता है कि वो अपने मुल्क से, अपने बाप से हरास शख्स हर इस चीज़ से अपना ताल्लुक़ तोड़ चुका था जो इसके लिए माजी का हिस्सा बन रही थी। अगर ऐसा ही था तो ऐसा क्यों था। इसने कुछ ना समझ पाते हुए दाएं बाएं देखा। आंसू मुसलसल इसकी आंखों से बहते चले जा रहे थे। इसने क्यों अपने हवाले से सिर्फ नादिया का नाम जाहिर कर रखा था। मुसलसल सोचने, जहन दबाव, डिप्रेशन और गम के मारे इसका माउफ जहन होने लगा था। इस तरह मत रहो छोटी लड़की। मोहम्मदजादे ने अपनी नशिश से उठकर इसके करीब आकर बैठते हुए बोला, वो अभी मरा नहीं है। इसकी अपनी आवाज़ बोझल होने लगी। इसकी चंद सांसें अभी भी इसके जिस्म से जुड़ी हुई हैं, और जब तक ये सांसें हैं वो ज़िंदा है। नादिया इसकी ये बात सुनकर और भी ज़्यादा शिद्दत से रोने लगी। शायद दुआ का वक्त है। मोहम्मदजादे ने इसका शाना थपथपाते हुए कहा, मैंने सुना है कि दुआएं कबूल भी हो जाया करती हैं। अगरचा मेरा यकीन बहुत कमज़ोर है, लेकिन अगर लोग ऐसे कहते हैं तो हो सकता है दुआओं को आसमानों तक पहुंचाने वाले फरिश्ते इधर ही हमारे इर्द गिर्द कहीं मौजूद हों। तुमने तो मुझसे भी ज़्यादा तफसील से सुना है। नादिया ने अपनी दबी दबी चीखों नुमा सिसकियों पर काबू पाते हुए कहा, डॉक्टर ने इसकी क्या हालत बताई है। इसने अपना भीगा हुआ चेहरा मोहम्मदजादे की जानिब मोड़ा। चोट इसके सर पर आई है, ज़रब इसके दिमाग पर लगी है, और वो कोमा की हालत में है। हाँ, मोहम्मदजादे ने सर हिलाया। लेकिन डॉक्टर्स ने यह भी तो कहा है कि वो बच नहीं सकेगा। वो अपनी कोशिशों के बारे में पुरुम्मीद हैं।
इतने डॉक्टर्स, नादिया ने सवाल चिल्लाने के से अंदाज में किया था। पूरे मेडिकल बोर्ड में से सिर्फ 2 डॉक्टर की ये राय है कि इसकी जान बच सकती है, वो भी सिर्फ इस सूरत में कि अगर इसे इब्तदाई इमदाद के बाद डार्लिंगटन में इसे मिल रही है, फ़ौरन किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाए। अगरचे ये हरकत इसकी जान के लिए मज़ीद ख़तरा साबित हो सकती है, हाँ तो हम ये ख़तरा मोल लेने वाले तो हैं। इसको यहाँ से लंदन मुंतकिल करने के तमाम इंतज़ाम मुकम्मल हैं। वो मंजादे ने इसे यकीन दिलाने के से अंदाज में सर हिलाया। नहीं, नादिया की चीख निकल गई। इसके इस चिल्लाने से इस पार्क में जहाँ वो दोनों बैठे थे और जो पेशतर लोगों ने मुड़कर इसकी तरफ देखा था। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, वो रास्ते में मर जाएगा। अगर साद ने मरना ही है तो क्यों ना बजाय इसको यहाँ रखकर इसके सामने बैठे हुए इसकी सांसों की गिनती करने के, इसकी ज़िंदगी बचाने का ख़तरा मोल लेते हुए ये मौत आ जाए। इस अमल में कम अज़ कम कोशिश का दखल तो शामिल होगा ना। मोहम्मद ज़ाते ने हतमी लहजे में कहा, नहीं प्लीज़ ये मत करो। जब तक वो ज़िंदा रह सकता है इसे ज़िंदा रहने दो। इसे जल्दी मार देने की कोशिश मत करो। मैंने बुरा किया जो तुम्हें यहाँ बुलाया। मोहम्मद ज़ादे ने यूँ सर झटका जैसे इसे नादिया के पागलपन पर गुस्सा आ रहा हो। बेहतर होता वहाँ पहुँचकर तुम्हें इतला देता। वहाँ पहुँचकर नादिया को भी मोहन पर गुस्सा आया। वहाँ पहुँच के इसकी लाश वसूल करने के लिए इतला देते। क्या तुम लाश तो यहाँ भी तुम ही वसूल करोगी, इस मसनूई तनफ़ुस के साथ जो चंद घंटे जीता नज़र आएगा। बस फिर तो लाश ही बाकी रह जाएगी जिसे तुम ही ने वसूल करना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ इसका इत्तफाक़ी दोस्त हूँ। जैसा भी हूँ, खूनी रिश्ता तो सिर्फ तुमसे है ना इसका। मोहम्मद ज़ादे तेज़ी से बोला और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। रुको, नादिया ने इसका बाजू पकड़ा। वो मतोहश नज़रों से इसे देख रही थी। ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो। मैं जामिद बैठ कर इंतज़ार नहीं कर सकता। मोहम्मद ने अपना बाजू इससे छुड़ाया। मुझे कोशिश करनी है, ठहरो, मुझे डैडी से रब्ता करने की कोशिश करने दो। नादिया ने इल्तिजाया नज़रों से इसे देखा। ऐसा करके इसको रुखसत होती हुई रूह को तकलीफ देने के सिवा कुछ नहीं करोगी। अपने बाप के बारे में जो गुफ्तगू इसने मुझसे की, इसमें मैंने कहीं अपने बाप के लिए इसके दिल में कोई गुंजाइश नहीं पाई। अपने बाप की वजह से ही तो वो अपने वजूद पर शर्मसार रहता था। मोहम्मद ने सख्ती से कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या सुना रहे हो। नादिया ने बेबसी से सर हिलाते हुए कहा, डैडी और साद। इसने सर उठाकर मोहम्मद की तरफ देखा। मैं कैसे मान लूँ कि साद डैडी से इतना बेजार था। बेहतर है कि मान लो, और बराए मेहरबानी बातों में उलझा कर मेरा वक्त ज़ाया मत करो। एक एक लम्हा कीमती है, मोहम्मद ने दुरुस्ती से कहा और वहाँ से चल दिया। नादिया ने यूं ही बेबस और मल्तजियाना नज़रों से इसे देखती रह गई थी। हेलो खारी, मैं महानूर बात कर रही हूँ। ओह महनूर बाजी, तुसी कित्थे रह गए थे जी। खारी के कानों ने जैसे महानूर का नाम नहीं कोई मुसलदा जान फिज़ा सुन लिया था। आई एम सॉरी खारी, मैं अपने मसाइल और मामलात में पढ़कर तुम्हें बिल्कुल ही भूल गई थी। आप मुझको भूल गए, कोई बात नहीं महनूर बाजी। तुसी बहन जी राबिया को और अपने आप को याद है, आप इनसे वादा करके गए थे कि बाऊ साहब का आगा पीछा मालूम करके दसोगे। खारी ने बेकरारी से गिला किया। वही आगा पीछा मालूम करते करते तो मेरा अपना रास्ता बदल गया खारी, और नए रास्ते के नशीब व फराज से मैं वाकिफ़ ही नहीं। मानो अजीब सी कैफियत में बोल रही थी। वाह भाई वाह, क्या बात है साद बाऊ साहब जी साहब दी, जिस दे नाल इनका माम जुड़ा हुआ है वही रास्ता बदल जाता है। खारी के लहजे में तंज की आमेज़श हुई। बड़े प्यो साहब के बड़े पुत्र साहब जो हैं साद बाऊ साहब, छोटे ते माड़ियाँ लोगों के रास्ते ही बदलने इन्हें, उन्हें के अपने ऊंचे दरवाजे उठाकर। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो खारी, मानू ने थोड़ा उलझते हुए कहा। बात सुनो, आज मैं तुम्हें एक ज़रूरी काम से फ़ोन कर रही हूँ। मैनू आप देना ਤੁਹਾਡੇ नाल एक ज़रूरी काम है महनूर बाजी, पर तुसी पहले हुक्म करो। हुक्म क्या खारी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे इस जापानी खरगोश दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए फ़ौरन।
मानू ने खारी की बात अनसुनी करते हुए कहा। रिजवानुल हक का नंबर? खारी ने इसकी बात पर हैरत से कहा। हाँ भाई, इसका नंबर, चलो जल्दी से दो मुझे इसका नंबर। मैनू जुबानी तो याद नहीं महनूर बाजी, मेरे मोबाइल फ़ोन दे विच इसका नाम है ते नंबर भी इस दी निशानी मैंने इस दे नंबर दे साथ ही खरगोश की तस्वीर लाई हुई है। तो फिर कैसे दोगे? मानू ने बेकरारी से कहा। फिर एक ख्याल सूझने पर इसने खारी को समझाया। तुम ऐसा करो कि अपनी बीवी सादिया के पास ले जाओ फ़ोन, इससे बोलो इस खरगोश का नंबर मुझे भेज दे। मुझे यकीन है इसे तरीका मालूम होगा नंबर भेजने का। अच्छा जी, मैं अभी भेजता हूँ। खारी ने सादिया के तालीम याफ्ता होने पर रश्क करते हुए जवाब दिया। ओके गुड, मानू ने तेज़ी से कहा। जल्दी करना प्लीज़, मुझे अर्जेंट ये नंबर चाहिए। इसने फ़ोन कॉल से हटाया। महनूर बाजी, मैं नंबर भेजना हाँ, पर मेरी तो एक गल सुन लो। खारी ने महानूर के फ़ोन बंद कर देने का इरादा भांपते हुए तेज़ी से कहा। मैं बड़ा परेशान हूँ जी, वो कहता रह गया और इसके कान से लगे फ़ोन पर टूं टूं की आवाज़ सुनाई देने लगी। जल्दी से अपना काम बताकर महानूर फ़ोन बंद कर चुकी थी और अपने दिल का हाल सुनाने को बेचैन खारी एक मर्तबा फिर दिल की बात दिल में ही लिए रह गया था।